the way she disconnected the call and she stopped me, I was like, मेरा यहाँ नहीं होने वाला है. Literally very tense. It's really irritating for me. It was little tricky question. Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video I'll share my interview experience at NITI Mumbai and how I converted it. I gave my interview in an online mode and it started around 10 a.m. in the morning. There were two panelists, one was male and one was female. के cameras off थे due to some technical glitch. ये पहला ऐसा interview था जहाँ camera off था. So interview start होते ही the first question which they asked me about, Anshika, tell me about yourself. So I explained everything about myself. When I was explaining about myself, उसी में से उन्होंने मेरे project के बारे में, मेरे final project के बारे में उठाया and they asked me about what all are the technical things which you have done in your project. Then they asked me about if you have to implement some artificial intelligence into this project, what it would be. कौन से component को आप replace करके AI introduce करोगे. So I explained about that also. It was little tricky question for me because in that project I never thought of implementing AI or something automated kind of thing. So मुझे जितना समझ आया मैंने उनको उतना बताया. Then they asked me about the difference between CPM and PERT. So मैं वो याद करके गई थी, मैंने उनको बताया. They asked me about what you are really doing in digital marketing and I explained to them what is digital marketing, how we do it. And she asked me about how you decide your targeted customer. So I told them about it depends on the product, place and all other factors which affect the targeted audience. Then she asked me about one of the recent happening during that time and that was जो शिप अटक गई थी स्विस कैनाल में. She asked me about the width of the river, length of the ship, width of the ship, why it got stuck. फ्यूचर में अगर हमको इन चीज़ों को अवॉइड करनी है तो what all are the steps you would take to avoid these kind of situation. So मैं जब ये situation समझा ही रही थी, like I was in second or third point I guess, मैं सिर्फ 30 सेकेंड बोला होगा मैक्सिमम. शी इंटरप्टेड मी इन बिटवीन. उन्होंने तुरंत ही दूसरा क्वेश्चन पूछा विच इज वेरी अनरिलेटेड टू दैट एंड दैट वाज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग. आई एम गेटिंग prominent ads on my Facebook and so what should I do for it and why you guys are doing digital marketing if it is irritating someone. So I explained my answer to it, all the algorithm of this digital marketing actually works and why it is important. When I was explaining to her, she interrupted and said, okay Anshika, that's all from our side, you can leave the call. After leaving the call, I was literally very tensed because the way she disconnected the call and she stopped me, I was like, मेरा यहाँ नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने अपने आंसर्स ही कंप्लीट नहीं किए हैं, मैंने अपने आंसर्स को एक्सप्लेन ही नहीं किया है. इट माइट बी पॉसिबल कि शायद सामने वाले को मेरे आंसर्स भी पसंद नहीं आए हो, बट गाइज आई फाइनली कन्वर्टेड इट. इस इंटरव्यू का जो मेरा एक्सपीरियंस था, इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपको बीच बीच में इंटरप्ट करे. सो उससे बिल्कुल घबराना नहीं और अपने आंसर्स को भी कंटिन्यू नहीं करना. जैसे ही वो आपको रोकते हैं आप रुक जाओ, उनके क्वेश्चंस को सुनो, उसके बाद नेक्स्ट जो वो पूछ रहे हैं आप उसके बारे में बताओ. पॉसिबल दैट दे आर जजिंग योर लिसनिंग स्किल एंड टाइम टू टाइम जैसे सिचुएशन चेंज होता है तो उसके साथ आपके आंसर्स चेंज हो रहे हैं कि नहीं, आपका कॉन्फिडेंस सेम है कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है. अगर बीच में उन्होंने स्टॉप बोल दिया है तो इट डजंट मीन कि आपका इंटरव्यू बहुत बेकार है या फिर आपने कुछ गलत आंसर दिया है इसलिए उन्होंने रोका है. प्रोफेसर्स इंटरव्यू लेते हैं, वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे एक स्टूडेंट को जज करते हैं एक्चुअली उनके इंस्टीट्यूट में फिट है कि नहीं, उनके जब वो फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे उसके लिए परफेक्ट फिट है या नहीं. तो इन सारे पैरामीटर्स पे जज किया जाता है. तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ये था एंड ये सबसे शॉर्टेस्ट इंटरव्यू था मेरा. अब जब मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए थे उन सब में सबसे शॉर्टेस्ट इंटरव्यू था. इसका इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 मिनट चला था. तो मैं और ज़्यादा टेंस थी कि मेरा इंटरव्यू का लेंथ इतना ज़्यादा छोटा है, मेरा तो होने ही वाला नहीं है इसमें. आपका सिलेक्शन इंटरव्यू लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपको बहुत सारे हर कॉलेजेस के अलग अलग फैक्टर्स हैं, उनके बेसिस पे आपको जज किया जाता है, फिर ही कोई डिसीजन लिया जाता है. सो निटी मुंबई का एक और चीज़ था कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस थे बिकॉज दिस कॉलेज इज ओनली फॉर इंजीनियर्स. गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो गाइस थैंक यू, टेक केयर, टिल देन कीप रॉकिंग गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय गाइस.